Hello, guys. My name is Pranjal Bahuguna. I am part of the English faculty here at Impact, and today I'll be discussing the various aspects that one has to take care of while giving the NDA exam. And if you ask me, my personal note would be that it was a cakewalk. Like the exam was actually very easy, and I will try and break down some of the questions which might have been confusing to many, but hopefully not to my own credits in my academy. So, by whatever I'm going to explain to you today, I hope it becomes easier for you to understand, especially two things. First and foremost would be that you have to let go of your ego. If you keep your ego aside and leave the questions which are doubtful, even if it is just 1% doubt, then you have already won half the battle. The second thing that is most important is that if the level of difficulty of the exam is on the higher side, if it's a difficult exam, then how do you actually strategize to give your attempt according to the level? Now, if the exam is easy, I always tell my cadets that if the exam is easy, even if you attempt more than 40 questions, it'll be fine. But if the exam is a bit tricky, it might seem like it's easy, but it might have some questions which in turn will increase the number of mistakes that you make in the exam. Right? So hopefully today you'll learn how to let go of some of the questions which you might feel you understand, but in reality it is something that might make your chances of getting through the examination a bit bleak. Okay, right. Now, here you can clearly see the number of questions that were given in the exam itself. Now, I will try and converse with you in Hindi as well as English, for it will be better for you to understand what I'm trying to say. So, जैसे last time you can see कि total number of questions जो हैं वो हम जितने भी topics में हम divide करते हैं English में, उसमें कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन basically NDA is circling around the same topics जो वो हर बार देते हैं. But what new things that we see in this exam is that last time as well as this time there have been no spotting errors. So the main part of grammar which you learn in these 1 year or 2 years or even short courses, उसका कोई खास काम नहीं है, right? But still it does not mean कि अगर आपने जो grammar सीखी है वो आपको कुछ और topics में काम नहीं आता. So it's going to be very easy. Just try and understand what I'm trying to say. Now, the number of questions on the left side is what the paper is already, giving you. But according to me, what I feel is the actual attempt, like the number of questions which I or an average student or an just above average student should attempt in English should be not more than 39. So if I am saying an average or above average, इसका मतलब अगर आपकी English weak है, so then you should be able to attempt at least 30. Now, attempting 30 means that you have to get 30 questions correct. 50 questions makes it 200 marks. Our aim is to cross that 100 mark in GAT as far as English is concerned. Right? So that is something which I want you to see. If you want to take a screenshot of this, you can. Otherwise, we'll leave some kind of file direction or something in the link below. Now, there are few topics in English which I feel should never be left, whether they're difficult or they're easy, because they can be solved in a very, very simple method. I'll show you just one method which will help you in solving all jumble sentences, and it will guarantee that you get all the answers correct. First question, for example, is now, if you read this jumble sentence, you will try and understand कि मैं एक बार पहले पूरा sentence पढ़ लेता हूँ before you go to the options. So it says good quality elementary education conforming as a fundamental right of all children. The Right to Education Act mandates to the standards and norms specified in the act. Now अगर मैंने आपको बोला था कि grammar जरूर काम आती है, तो एक चीज जो हमें इंपॉर्टेंट होती है इन जंबल सेंटेंस, दैट इज कि ये हर बार
आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो एवरी टाइम, एंड इट डज नॉट फेल। हर बार आपका आंसर भी ठीक ही होगा। नाउ इन दिस वी कैन क्लियरली सी दैट अगर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं कि ग्रामर हमें कहां काम आती है, वो यहां काम आएगी। नाउ द ऑप्शंस हियर आर, initiators are Q, R and S. So for example, I'm just giving you a very simple trick to solve this, and it can be solved with 100% accuracy. Now, instead of going for options or anything else, just try and connect any two of these options, whether it is PQ, RS, SP, SQ, whatever you want. Now, अगर ग्रामर की बात होती तो you could have clearly seen conforming and the word to. They have to go together. There is no other possibility. This has to be in continuation, so we can see that P and S have to be one after the other. क्या इसमें PS है? नहीं। इसमें है, इसमें no, इसमें no. Automatically your answer becomes bravo. मेहनत नहीं लगती इसमें यू जस्ट हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि आपको एक या दो सेंटेंसेस जो हैं वो आपस में ज्वाइन करके यू हैव टू मेक सेंस, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। सो एज फार एज दैट इज कंसर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आई विल टेल यू कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, और उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क पे सर्कल मैंने किया है, एंड आई विल इन्फॉर्म यू। So all jumble sentences are quite easy. We have already shared the entire PDF with our answer key on our website. So you can check that out in the link itself. Then we come down to parts of speech. Now parts of speech is something which I make sure that my students here at the academy learn when they were in +1. Now 11th class is something which is very important for their basics. एंड इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर सीखने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रामर के कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको कहते क्या है, वो करते क्या है। दैट्स व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी डेफिनेशन क्या है, एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू यूज द आंसर्स उस केस में। नाउ अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इफ यू लुक एट इट, नाउ जंबल सेंटेंस हमने कोई भी नहीं छोड़ा। कमिंग डाउन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, एनीथिंग, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन था जो टफ था वो हमने छोड़ दिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, नो नीड टू लिव, एडल्स आर द ओनली पॉइजनस स्नेक्स। अगर किसी चीज का हम नाम दे देते हैं सो ऑटोमेटिकली, जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे नेम प्लेस एनिमल थिंग, दैट इज समथिंग विच इज जो एक ही कैटेगरी होती है जिसका नाम है नाउन। सो एडल्स अगर किसी का नाम दिया हुआ है सो ऑब्वियस आंसर वुड बी दैट इट इज अ नाउन, तो ये जो छोड़ने लायक नहीं है। Then second question is, she spoke to him once since he has been in town. Anything which connects or breaks the sentence between the principal clause and a subordinate clause is something which we call a conjunction. दो चीजों को जोड़ने वाला, ब्रिज बनाने वाला या कनेक्ट करने वाले वर्ड्स को हम कंजंक्शन यूज करते हैं। इवन दो सिंस जो है वो रीजन के लिए भी यूज होता है, बट अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो इस सेंटेंस में इट इज अ सिंपल कंजंक्शन, तो ये भी नहीं छोड़ना है। देन दिस इज समथिंग विच आई फील कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर ना भी करे तो चलेगा। अंडरस्टैंड कि एक एवरेज अबव एवरेज वाली जो अटेम्प्ट में बात कर रहा हूं, वी हैव जस्ट लेफ्ट हार्डली आई थिंक 11 क्वेश्चंस और 9 क्वेश्चंस जो हमने छोड़ने हैं, उनसे ऊपर छोड़ने वाला ये पेपर ही नहीं है। सो इन एनी केस गैट की अगर ओवरऑल कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी भी, वैसे तो कट ऑफ नॉर्मल होगी, बट अगर थोड़ी सी ऊपर बढ़ती भी है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश एंड साइंस। इस बार का आपने पेपर अगर देखा होगा यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ 8th आई विल से वी कैन लीव। सो एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन विच वी वांट टू लीव कैन बी सर्कल्ड। ये पेपर में अटेम्प्ट करते हुए भी यू शुड यूज द सेम स्ट्रेटजी कि टिक मार्क वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जो करने ही करने, देन सर्कल वाले वो होते हैं जो शायद डाउटफुल हैं, एंड क्रॉस इज डेफिनेटली करना ही नहीं। सो अगर मैं इसको सिंपल डाउट में भी लेता हूं, मैं फ्री होके आई कैन से कि करने की जरूरत नहीं, इवन दो आई विल एक्सप्लेन। आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड्स, इट्स टू लेट नाउ। नाउ एडवर्ब अपने आप में इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स। एड इज शॉर्ट फॉर एडजेक्टिव
and verb itself is obviously a verb. तो कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को चेंज करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, देयर इज सम काइंड ऑफ अगर वो उसकी सिर्फ क्वालिटी ही नहीं कि ओवरऑल उसको मिटिगेट या इंटेंसिफाई करता है, उन सब वर्ड्स को हम एडवर्ब्स की कैटेगरी में ही रखते हैं. इन दिस सेंटेंस इट इज टू लेट नाउ, दिस इंटायर थिंग वैसे यूज होता है फॉर टाइम, बट लेट कैसा, लेट कब, इन अगर सवालों की बात करी जाए, so we can clearly see कि this is actually talking about the action. In that case, this will be acted as कि adjective पे आपने उसको और qualify करने की कोशिश करी, late हो गया है अब, and that is why it becomes an adverb. Right? So it's not, I will say कि a very common sentence, but still मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है इसमें, it is always best कि आप ऐसे questions मत attempt करो. Okay. Moving on, इसके अलावा when we see ninth is also very easy. Look at that man over there. That, this, these, those, ये सारे words जो होते हैं they are called, कि मैं इनको demonstrative pronouns भी बोलता हूँ, plus I also call them determiners, कि अगर close to speaker है तो this है, away from speaker है तो that है, these, those. तो इसका clear cut answer है जो हमारे सभी students ने करा हुआ है, that is determiner, कि बताता है, determine करता है कि क्या है. और प्लस अगर वो एज अ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन भी एक्ट करता है, तब वो उन चीजों की बात करेगा जो चीजें स्पेसिफिक होती हैं. दैट का काम ही क्या होता है कि चीजों को स्पेसिफिक बनाता है. सो ये तो करने लायक है. लेकिन देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अगेन आई विल सजेस्ट कि आप अटेम्प्ट ना करो. द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ. इफ यू सी, तो ये टेक ऑफ अपने आप में अगर मैं एक्शन की बात करता तब ये वर्ब होता, लेकिन इन दिस सेंटेंस वी कैन से कि ये जो फॉर प्रेपोजिशन यूज हुई है टेक ऑफ के लिए तैयार है, सो इट कैन नॉट बी अ वर्ब. अगर टेक ऑफ के लिए तैयार है तो टेक ऑफ अपने आप में क्या है, उस पर्टिकुलर एक्शन को नाम दिया हुआ है, इसीलिए अगेन टेक ऑफ विल ऑल्सो बी अ नाउन इन दिस सेंटेंस. अगर मैं होता एज अ कैंडिडेट, मैं सेंटेंस को अटेम्प्ट ना करता, बिकॉज देयर इज अ क्लियर कंफ्यूजन बिटवीन वर्ब एंड नाउन. ओके, अब टोटल नंबर ऑफ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 10, एंड आई फील कि इसमें से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली करे जा सकते थे, बट अगेन वो हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा. इवन इफ यू अटेम्प्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस इन वोकैबुलरी, दैट इज मोर देन इनफ. अगेन मेरी बात याद रखना, ईगो इज समथिंग जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो. आपको लगता है कि आपने क्वेश्चंस कम करे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. इवन इफ यू हैव 25 क्वेश्चंस करेक्ट, दैट मेक्स इट 100 मार्क्स, राइट? एंड साइंस में यू स्कोर अगेन 100 और 120, दैट मेक्स इट 220. अब जीके जितना भी आपका रह जाता है, मैक्स टू मैक्स आप बहुत मेहनत करोगे तब भी यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 15, 20 और 25 क्वेश्चंस इफ यू आर रियली गुड. उससे ऊपर हम कर ही नहीं सकते. तो आपके इन एनी केस यू क्लियर द कट ऑफ ऑफ गैट वेरी इजीली. सो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग ओवरबोर्ड. याद रखने वाली बात यह है कि दिस एग्जाम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स दैट यू कैन गिव एज अ कैडेट, बिकॉज इस कंपटीशन में रैंक का कि भाई फर्स्ट रैंक आई है तो ही आपको अच्छी ज्वाइनिंग्स मिलेंगी, ये होगा वो होगा, कुछ मैटर ही नहीं करता. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपने ये एग्जाम पास करना है. अगर मेरे को कोई बता दे कि हाँ यार यू हैव टू कंप्लीट 45% ऑफ द सिलेबस बट यू हैव टू परफेक्ट इट, आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट? ओके, अब इसमें जो मैं क्वेश्चंस सोच रहा हूं कि जो मेरे को नहीं करने, पहले मैं उनको मार्क कर देता हूं. So I feel that some of these words were difficult, not the original word itself, but some of the options were confusing, right? So in that case, fallible is a word which we are not going to do. Then we are not going to cover incidental and disdainful. Now, even though fallible, incidental and disdainful itself are not very difficult, these are common words for competitive exams, right? मैं नहीं कह रहा कि आप और मैं बात करते हुए ये वर्ड्स यूज करते हैं, इवन दो करने चाहिए, बट अगर हम ये यूज नहीं करते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि अगर वो ऑप्शंस जो हैं उसके अगर आप ध्यान दो तो थोड़े से टफ हैं और मे बी थोड़े ट्रिकी हैं. सो दैट्स व्हाई दीज वर्ड्स आर नॉट फॉर एवरीवन. सो इवन दो ऑन दिस एंटायर पेज वी आर ओनली गोइंग टू कवर वेग एंड कॉन्शियसली,
तो इसी केस के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां क्वेश्चंस छोड़ने पड़ते हैं. नाउ फैलिबल इज अ वर्ड विच मीन्स कि किसी भी तरीके का एनीथिंग विच इज एरर प्रोन, जिसमें गलती होने की गुंजाइश होती है, दैट वर्ड. सो अगर गलती होनी है, वी आर गोइंग टू फाइंड एंटोनिम्स. द ओनली वर्ड विच इज यूज्ड हियर इज परफेक्ट. मॉर्टल हो नहीं सकता. मॉर्टल इज यूज्ड फॉर पीपल लाइक अस, those who will die, and you should remember is human. is human to is human मतलब एक इंसान से गलती होती है टाइप. So we can say again is used with error. Erring in itself becomes error, and frail is also a synonym of fallible, even though frail means a weak kind of a thing or person, right? So the only thing we are going for is perfect, which is the opposite. Then if we come down to incidental, incidental वो चीजें होती हैं जिसको हम लेस इंपॉर्टेंट मानते हैं. मतलब कोई चीज जो कि सेकेंडरी हो सकती है, प्राइमरी नहीं है, राइट? सो इफ दिस इज समथिंग विच इज लेस इंपॉर्टेंट, तो हमें वो चाहिए जो इंपॉर्टेंट का ऑपोजिट हो. द ओनली वर्ड हियर इज एसेंशियल. एडवेंटिशियस का मतलब भी अपने आप में क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज को जिसको मैं प्लान नहीं करता पहले, समथिंग विच इज अनप्लैंड, दैट इज एडवेंटिशियस. अब सेरेंडिपिटिशियस मतलब अगर कई बार मैंने देखा है कि बहुत लोग यूज करते हैं सेरेंडिपिटी और ये सब चीजें, उसमें भी इफ यू सी तो वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है कि कोई भी चीज जो बाय लक हो जाए और बाय चांस. अगेन समथिंग विच इज नॉट एट ऑल द ऑपोजिट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट सब्सिडरी, तो हमको पता ही है कि कोई भी चीज अगर होगी तो वो सेकेंडरी होगी, तो वो अपने आप में ही इसका सिनोनिम है. सो क्लियर कट आंसर वुड बी एसेंशियल. लास्ट जो यहां पे है, अब डिसडेनफुल मेरे सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है कवर, इवन इंसिडेंटल हमने कवर किया हुआ है, एंड वी हैव कवर्ड फैलिबल. लेकिन आई स्टिल डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू दीज क्वेश्चंस बिकॉज द ऑप्शंस कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग. अब जैसे डिसडेनफुल है, उसमें ये वाले वर्ड मैंने कवर नहीं किया, सो आई विल एक्सपेक्ट माय स्टूडेंट्स नॉट टू अटेम्प्ट. ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये किया हुआ है. सो अगर मेरे को 4 में से 3 नहीं पता है, इट इज क्लियर कट कि मेरे को ये आंसर नहीं करना है. नाउ इफ यू लुक एट डिसडेनफुल, तो वो उन चीजों के लिए यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कि जिसके लिए हमने सिनोनिम्स भी किए हुए हैं कई बार, कॉल्ड स्कॉर्नफुल. ठीक है? सो इट इज अबाउट कि जब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हो, एंड दैट इज द केस. सो डिसरिस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा? अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ रेवरेंशियल. अब डिराइजिव अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए अगेन अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता, यू कैन नॉट सॉल्व दिस. अगर अब मैं किसी को डिराइजिव के लिए यूज करता हूं, द क्लोजेस्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड इज मॉकिंग. किसी को मॉक करने को, चिढ़ाने को, टॉन्ट करने को वी कॉल डिराइजिव. सुपरसिलियस इज अगेन अ वर्ड विच वी यूज फॉर पीपल हु आर एरोगेंट, और वी कैन से सिंपली रूड. अब उसके लिए भी मेरे को पता है कि मैंने वो वर्ड्स करे हैं जो कि एरोगेंट के सिनोनिम हो सकते हैं. जैसे इंसोलेंट में ही इसका ही सिनोनिम है, एंड द वर्ड वी हैव कवर्ड ऑलरेडी एट इम्पैक्ट इज, वी हैव कवर्ड हॉटी, वी हैव कवर्ड एरोगेंट, वी हैव कवर्ड इंसोलेंट, वी हैव कवर्ड रूड, मॉकिंग, ये सब, स्कॉर्नफुल, डिसडेनफुल. लेकिन फिर भी इतने वर्ड करने के बावजूद ये वाले जो वर्ड्स हैं अगर मेरे को नहीं आते, I will not attempt this question. ठीक है? So this is where you have to learn. I'm using so much time to explain this because it is very important for you to understand कि मेरे को कौन से questions छोड़ने हैं. ठीक है ना? It is not about how hard you can hit, but it is about how hard you can get hit. Right? In that case, moving on, comprehension एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑल आंसर्स, 90% ऑफ द आंसर्स इटसेल्फ आर इन द कॉम्प्रिहेंशन. बट स्टिल इसमें कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है विच आई फील कि हमको छोड़ने चाहिए. नाउ लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18, आई फील कि इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन दो वो कहता है रिसर्जेंट डिजीजेस आर अफेक्टेड बाय, किन चीजों से? मेडिकल प्रैक्टिसेस का ही वो एक सब कैटेगरी है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू स्ट्रेन्स इज अगेन
समथिंग विच इज ऑफ द सेम कैटेगरी। तो आंसर शुड बी 1, 2 एंड 3, बट अगर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको ये दो क्लियर कट मिलेंगे, यू माइट मिस आउट ऑन द थर्ड पार्ट। तो नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस अगर आपको एपिडेमियोलॉजी का मतलब नहीं पता, इट डज नॉट मैटर, इट इज अ सिंपल साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। इकलौती चीज जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 ऑप्शंस में है, ठीक है। अब बात सिर्फ किस में आती है, यहां पे इन्वेंशन दे रखा है, नो। यूजेस ऑफ ड्रग्स दे रखा है, नो। हमें क्लियर कट पता है कि वी इन द एंटायर पैराग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीजेस, इसीलिए वी विल स्टिक टू कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड नॉट ड्रग्स। सो क्लियर कट आंसर, हिस्टोरिकल स्टडी नहीं चाहिए, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग डाउन टू, जब हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स में हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, because we have covered all questions here in the class, and I feel कि an average student will come across these words whenever he is preparing for anything competitive. So जैसे इसमें first word है which is caution. Caution करना मतलब obviously किसी को चेतावनी देना, तो warning is very easy. Monotone, monotonous is a word which comes from monotone. Mono means one tone मतलब boring, dull. जब आप वो ऐसे हार्ट बीट्स भी देखते हो, उसमें भी जब फ्लैट लाइन आती है दैट इज कॉल्ड डेड, और सम उसी केस में मैं मतलब एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मोनोटोन्स मींस बोरिंग एंड डल। सो मोनोटोनस इज डल का सिनोनिम। Then elusive is a word which we have covered many times. It has come in competitive exams like CDS and in FCAT. So उसी तरीके से NDA के लिए भी उन्होंने इस बार वर्ड दिया, and we had covered this, so I feel कि सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। So उसके closest synonym is baffling। कोई भी चीज elusive होती है, so that means it is not clear, something which is absolutely unequivocal। Unequivocal is again something जो कि बहुत ही clear हो, उसको बोलते हैं। तो वो इसका opposite होता है जिसमें हम उसको elusive बोलते हैं। अब कोई चीज unequivocal है तो वो clear है, elusive है या equivocal है तो वो clear नहीं है, and that's why it is something which is baffling। और तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। Truthful, paramount मतलब very important। Anything which is of utmost importance is called paramount, right? So ये चीजें हमें चाहिए नहीं, easy answer। Moving on, again next is कि कोई भी चीज mammoth itself बहुत पुराना एक extinct dinosaur का टाइम के animals को हम mammoth बोलते थे, it was a huge elephant। In that case, the word itself is used for things which are very big। Then tarnish is a word which is very common for competitive exams। वो tarnish हो गया तो मतलब spoil कर दिया, खराब कर दिया, उसके लिए closest word is tainted। So all synonyms have to be covered because they're actually very easy, right? Then we come down to idioms, completion of sentences। Completion of sentences is just like कि अगर सेंटेंस में आपको मैं fill in the blanks दे दूं और उसमें बोलूं कि इसमें you have to choose, और सेंटेंस completion भी बोलते हैं इसको, कि instead of fill in the blank you just have to complete the sentence or connect the best option possible। इसमें भी कोई क्वेश्चन ही नहीं था छोड़ने लायक, right? Answers are given on the website, you can check them out। I just wanted to discuss one last thing which is the idiom part and the cloze test, so let's go through that। Right, now idioms में again only particular idiom which I feel can be doubtful is 39। उसके अलावा कोई भी ऐसा particular idiom नहीं है जो कि easy ना हो। White lie, सफेद झूठ, उसी को बोलते हैं जिसको हम a lie that is absolutely and universally true, साफ ही पता लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। Bad blood is always between two people or two parties or two organizations or any number of people। तो उसमें वो तब होता है जब आपके रिलेशनशिप्स अच्छे ना हो। और देन यू हैव काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो आप वैसे भी यूज करते हो कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच हैव बीन ऑलवेज गुड फॉर यू, तो उसी को याद करते हुए टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। हैव द लास्ट लाफ, वैसे मैं मानता नहीं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर बाई चांस भी कंफ्यूजन होती है यू कैन लीव दिस। उसका सेंटेंस जो है उसका मतलब यही होता है कि चाहे पहले लोगों को लग रहा हो कि ये नहीं कर पाएगा टाइप, एंड we'll see who has the last laugh, वो एक तरीके से बोला जाता है so that you understand कि it is when you succeed when others thought you would not। In that case it is simple and it is easy। Last is sit on the fence। फेंस पे अगर आप बैठे हो, for example
तो ना आप इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, सो यू आर अनएबल टू डिसाइड, एंड दैट वर्ड वी यूज फॉर दैट इज सिटिंग ऑन द फेंस इज इनडिसाइसिव, कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो डिले मेकिंग अ डिसीजन। तो इसमें भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है जो हम क्वेश्चन छोड़ें। लास्ट थिंग which I wanted to cover with you was question number 44. अब इसमें 44 है and 47 है which I wanted to discuss. अगर हम बात करते हैं about wild populations have numerous traits, in that case कौन सा एक particular word है जो हमारे लिए बहुत easy होना चाहिए। अब only the fittest survive, इस लाइन की वजह से, this is actually Darwinian theory, राइट। चार्ल्स डार्विन ने बोला था ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसी केस में अगर बात हो रही है कि उसके बाद क्या आएगा, इन दैट बाद वाली बात वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंट मतलब कि उसी वजह से आगे क्या होता है, बाकी कोई भी वर्ड इसमें से सूटेबल नहीं है। एंड लास्ट इज 47। इसमें आई विल सजेस्ट कि यू लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि वैसे तो सारा कुछ टाइम के लिए ही है। यहां पे एराज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट एरा, जैसे वी कैन से विक्टोरियन एरा कि वो अलग टाइम। देन इपॉक्स इज द बेस्ट वर्ड एक्चुअली हियर। इपॉक्स का इज रिलेशन जो होता है दैट इज कि आने जाने वाले टाइम में जो कुछ भी चीजें हुई हैं, जो चेंजेस हुए हैं आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट में आसपास, उसकी वजह से विद टाइम आप में क्या चेंजेस आए हैं, तब हम इपॉक्स को यूज करते हैं, जो कि एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अबाउट the conditions of the various things. Periods again time frame होता है, उसमें तो आ नहीं सकता। and generations obviously is absolutely clear कि generations वो होती हैं, जैसे आप हो, आपके बाद आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स हैं, वो हैं, ये सारी generations होती हैं। again it talks about time of family. The only thing which I feel पूरे close test में छोड़ने लायक था was 44 and 47. again my main discussion here is absolutely simple कि if you learn what questions you have to leave, that is all that is required. पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि एक एवरेज स्टूडेंट ना कर सके। According to me, number of questions that can be covered are somewhere around 35 to 39. आपका भी hopefully attempt इतना ही गया हो, and if you have any confusion, please do write to us. We will also leave our email IDs if you have any confusion, or if you feel that you have a different answer, please let us know. Right? Thank you. All the best. Jai Hind.